everyone, I am Suhani. Welcome back to a new video of Chapter 1 of Chemistry, Class 9th, Matters in Our Surroundings of Part 2. So let's begin this video with a very interesting topic, which is change of state. As we know, change of state can be done by two methods, changing the temperature and changing the pressure. Now, when a solid is heated, it changes into liquid. As we all know, when solid, example like ice, when it is heated, it changes into water. When a liquid is heated, it changes into gas, and when liquid water is heated up, it changes into gaseous form, this is steam. When a gas is cooled, it changes into liquid. When a liquid is cooled, it changes into gas. When gas is cooled down, it changes into liquid water, and when liquid water is cooled down, it changes into solid, which is ice. If ice is heated, it changes into water. If water is heated, it changes into steam. If steam is cooled, it changes into water. If water is cooled, it changes into ice. As you can see in this chart, solid changes into liquid state on heating, and liquid state changes into gaseous state and on heating. But a gaseous state changes into liquid state on cooling, and liquid state changes into solid state on cooling. Nextly, ice. Ice is a particle close together, cannot move about. See in this picture, the particles of ice are so tightly packed that they have no gap between us and they did not move. And as we can see in this water, the particles are moving faster and further apart. But as we see in this boiling water, the particles are far apart and move very quickly and randomly. Now moving to next topic, which is melting. It is also called fusion. When a solid is heated, the particles begin to vibrate with greater speed and begin to move freely. Then at particular temperature, the solid melts and changes into liquid. The process of melting is also known as fusion. When solid is heated up, जब भी हम किसी solid को heat करते हैं, example is ice. When we heat up the ice, the particles begin to vibrate. जो उसके particles होते हैं वो vibrate होने लग जाते हैं और greater speed से move करने लग जाते हैं. और जो पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है सॉलिड का वो कम होने लग जाता है, वो मेल्ट होकर वाटर स्टेट में, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है. और जो मेल्टिंग के प्रोसेस को हम फ्यूजन भी कहते हैं. द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड मेल्ट्स इनटू इज कॉल्ड अ मेल्टिंग पॉइंट. और जिस टेम्परेचर पर सॉलिड मेल्ट करता है उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री. और मेल्टिंग पॉइंट आइस का होता है वो 0 डिग्री होता है और उसको हम 273 केल्विन में लेते हैं. देन latent heat of fusion. The amount of heat energy required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure and its melting point is called latent heat of fusion. हम जब 1 kg of solid को change करते हैं 1 kg of liquid में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर जब जो और मेल्टिंग पॉइंट में, उसे हम latent heat of fusion कहते हैं. As we can see in this diagram. Moving to next topic, which is boiling. When a liquid is heated, its particles begin to move even faster. Then at a particular temperature, the liquid begins to boil and changes into gas and vapor. जब हम लिक्विड को हीट करते हैं उसके पार्टिकल्स भी बहुत तेज़ मूव करने लग जाते हैं और जो उसका टेम्परेचर होता है वो बढ़ने लग जाता है. जैसे हमने मेल्टिंग में देखा उसमें कम होता है और बॉइलिंग में टेम्परेचर बढ़ने लग जाते हैं और जो लिक्विड फॉर्म होती है वो चेंज हो जाती है गैसियस फॉर्म में. बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेना. व्हेन अ लिक्विड बॉइल्स इन द बल्क ऑफ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर. और बॉइलिंग एक बल्क फेनोमेना कि बहुत सारा मतलब पानी चाहिए, कम से कम आधा लीटर 1 लीटर, ऐसे कुछ थोड़ा अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए पानी का किसी भी लिक्विड का उसे बॉईल करने के लिए और उसे चेंज करने के लिए गैसियस स्टेट. द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. और जैसे कि हमने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा है वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट भी है. टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं और जब आइस मेल्ट होना स्टार्ट होती है तो उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. और ये थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स है आपको लर्न करने के लिए. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन. Boiling point of water is 100 degrees Celsius or 373 Kelvin. As we know, melting point is 273, but because the boiling point of water is 100 degrees Celsius, we add 273 plus 100, which is 373 Kelvin. Next, latent heat of vaporization. The amount of heat energy required to change 1 kg of liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point is called latent heat of vaporization. जब हम कोई भी लिक्विड को 1 kg लिक्विड को गैसियस स्टेट में चेंज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में और उसको हम उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं. सेम है जब हम 1 kg ऑफ सॉलिड को चेंज करते हैं लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तब हम उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, एज वी सी हियर. मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, विच इज सब्लिमेशन. द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस और फ्रॉम गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन. सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं, गैसियस स्टेट में से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में हम इसमें लिक्विड स्टेट को हम स्किप कर देते हैं, हम उससे छोड़ देते हैं.
Example is like if solid camphor or a aluminum chloride is heated, it changes into vapor. In vapors are cooled, it changes into solid. As we know, camphor कपूर जो होता है, हम उसको जब भी हम उसमें आग लगाते हैं, उसे गर्म करते हैं, वो डायरेक्ट लिक्विड में चेंज नहीं होता, वो डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाता है. नेक्स्ट, दिस इज द डायग्राम of sublimation of aluminum chloride. I will explain about this diagram in a separate short video. Now moving to our next topic, which is effect of pressure on gases. When pressure is applied on gas, the particles come closer and the gas changes into liquid. We can liquefy gas by applying pressure and reducing the temperature. जब हम किसी भी गैस में प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाते हैं. और जैसे कि हमारे घर में एलपीजी सिलेंडर होता है, उसमें जो गैस होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो भी उसी स्टेट में उसमें प्रेजेंट होती है. वी कैन लिक्विफाई गैसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर. और हम गैसेस को भी लिक्विफाई कर सकते हैं प्रेशर उसमें अप्लाई करके या फिर हम उसका टेम्परेचर कम या ज़्यादा करके. कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राई आइस. और जो कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे हम ड्राई आइस भी कहते हैं. If the pressure is reduced, it changes directly to gases without coming into liquid state. और जब हम प्रेशर रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, वो डायरेक्टली गैसेस स्टेट में चला जाता है, लिक्विड स्टेट में जाए बिना. सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस. इसलिए हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहते हैं. सो दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ गैसेज एंड व्हेन दे आर compressed they changes into liquid state. Now moving to our next topic, which is interconversion of the three states of matter. As we all know, there are three states of matter: solid, liquid and gases. The three states of matter are interconvertible. The state of matter can be changed by changing the temperature or pressure. As I have told you earlier, there are two ways to change the state of matter, which is reducing or increasing the pressure or temperature. Then when solid is melted, it changes into liquid state, which is also called fusion. And when the liquid is heated up, it changes into gaseous state, which is also called vaporization. And when gaseous state changes into solid states, it is called sublimation. And the opposite is the solid. When the solid changes into gases, it is also called sublimation by skipping the liquid state. And when gas state changes into liquid state, it is called condensation. And when liquid state changes into solid state, it is called solidification. Moving to our next and last topic, which is evaporization. The change of a liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे कोई भी कम टेम्परेचर पे अगर हम किसी भी चीज़ को बॉईल करते हैं तो हम उसे कहते हैं evaporization. Evaporization is a surface phenomena. Particles from the surface gain enough energy to overcome the force of attraction and changes into vapor state. और ये एक surface phenomena होता है जिसमें particles जो होते हैं वो एकदम फिक्स एनर्जी जो गेन करते हैं और जो उनकी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होती है वो चेंज हो जाती है वेपर स्टेट. सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, विच इज इवेपोराइजेशन. सो हियर कम्स द क्वेश्चन, व्हाट इज इवेपोराइजेशन. तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोराइजेशन. जो प्रोसेस होता है जो लिक्विड को चेंज करने के लिए वाटर वेपर्स में और गैस के स्टेट में, उससे हम कहते हैं इवेपोराइजेशन. और जो कि उसके जो मटेरियल उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम है. And at any given temperature, the kinetic energy of some particles on the surface of liquid is high enough to overcome the forces of attraction by other particles. और जो कुछ काइनेटिक एनर्जी जो होती हैं इस पार्टिकल्स में जो सरफेस ऑफ लिक्विड में जो हाई होती हैं और कुछ में कम होती हैं. जो हाई होती हैं वो ओवरकम करती हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो अदर उसके अलग अलग पार्टिकल्स से, और वो लोग ना एक लीव करते हैं लिक्विड को कन्वर्ट करके एक वेपर स्टेट में. नाउ वी विल स्टडी अबाउट factors affecting evaporization. There are mainly 4 factors affecting evaporization, which is surface area, temperature, humidity and wind speed. Increasing the surface area, increasing the rate of evaporation. जब हम surface area को बढ़ा देते हैं तो उसका rate of evaporation भी बढ़ जाता है, इसलिए जो मटेरियल है वो जल्दी से evaporate हो जाता है. Increasing the temperature increases the rate of evaporation. और जब हम उसका टेम्परेचर हाई कर देते हैं तो उतनी ही ज़्यादा फास्टर evaporation भी होने लग जाती है. Increase इन द ह्यूमिडिटी डिक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन. और जितनी उसमें ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना ही कम इवेपोरेशन होता है. इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन. और जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होगी, जितनी अच्छे से हवा ज़्यादा तेज़ चल रही होगी, उतनी जल्दी इवेपोरेशन होगा. इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग. When a liquid evaporates, the particles of the liquid absorb heat from the surroundings and evaporates. जब भी कोई लिक्विड इवेपोरेट होता है तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं ना लिक्विड के, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं सराउंडिंग में, जिससे कि वो एवेपोरेट हो पाते हैं. सो द सराउंडिंग्स बिकेम कोल्ड. और जो उसके आसपास का एरिया होता है, उसकी सराउंडिंग होती है, वो कोल्ड हो जाती है. और इसका एग्जाम्पल, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द फ्लोर और ओपन ग्राउंड ड्यूरिंग evaporation. Water absorbs heat, make the
हॉट सरफेस कूल, कि जो आपने लोगों को देखा होगा कि जो वो स्प्रिंकल करते हैं वाटर ग्राउंड पे गर्मियों के टाइम पे, जिससे कि जो वाटर होता है वो बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है और जो उसके आसपास का एरिया हो जाता है वो थोड़ा कूल हो जाता है. ड्यूरिंग समर वी स्वेट मोर बिकॉज ड्यूरिंग एवेपोरेशन द स्वेट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम अवर बॉडी एंड मेक अवर बॉडी कूल. और जब गर्मियाँ होती है हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, स्वेट आता है, और उसी स्वेट से हमारी बॉडी जो हीट एब्जॉर्ब करती है वो सब जब बाहर निकलती है हमारी बॉडी कूल हो जाती है. वेयरिंग कॉटन क्लोथ्स इन समर कीप्स अस कूल. और जब हम समर में हम हमेशा कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि वो हमें कूल करते हैं. क्यों? क्योंकि वो जो हीट होती है ना और स्वेट उन सबको एब्जॉर्व कर लेते हैं, और जो स्वेट ऑब्जर्व करते हैं वो उसको इवेपोरेट हो जाता है, तो वो हमें कूल करता है, हमारी बॉडी को कूल फील करता है. और इसका एक और रीज़न है कि जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं उसमें एयर अच्छे से पास हो जाती है, इसलिए भी हम कूल फील करते हैं. एंड हियर इट कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, then why we wear light colored clothes in summer. So light colored clothes or white colored clothes absorb less heat in summer. However, dark colored clothes absorb more heat, making the person feel more hot and sweaty. As a result, light colored clothes are preferred in summer as they make the person feel cool and comfortable. जो लाइट कलर्स के क्लोथ होते हैं या फिर वाइट कलर के क्लोथ होते हैं वो लेस हीट को अब्जॉर्व करते हैं, और जो वो कम हीट ऑब्जॉर्व करते हैं तो हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है, और जो जितना वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वेट एब्जॉर्व करते हैं और हमारी बॉडी को हमें कूल करने में हेल्प करते हैं. देन हियर इट इज़ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन. फर्स्टली आई विल टेल यू अबाउट बॉइलिंग. बॉइलिंग ऑकर्स ओनली व्हेन द लिक्विड इज हीटेड. जो बॉइलिंग प्रोसेस तभी होता है जब लिक्विड को हम हीट करते हैं. बॉइलिंग टेक प्लेस एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड. और बॉइलिंग तभी परफॉर्म होती है जब वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका, जो लिक्विड को बॉयल होने के लिए चाहिए. बॉइलिंग ऑकर्स फ्रॉम द सर्फेस एज वेल एज फ्रॉम द बल्क इन अ लिक्विड. और कि वो एक सर्फेस से भी हो सकता है या फिर एक बल्क में लिक्विड हो, एक बहुत बड़ी मात्रा में लिक्विड हो उससे भी हो सकता है. नो कूलिंग इज कॉट ड्यूरिंग बॉइलिंग. और बॉइलिंग के वक्त कोई भी कूलिंग इफेक्ट या कूलिंग बिल्कुल नहीं होती है. देन इवेपोरेशन. इवेपोरेशन इज अ लिक्विड टेक प्लेस ऑन इट्स ओन. इवेपोरेशन जो होता है वो अपने आप ही होता है. इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल द टेम्परेचर्स बिलो द बॉइलिंग पॉइंट. और जो इवेपोरेशन होता है वो बॉइलिंग पॉइंट से कम जितना भी टेम्परेचर हो सब में होता है. इवेपोरेशन इज अ सर्फेस फेनोमिना एंड ऑकर्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लिक्विड. और एक सर्फेस फेनोमिना है और ये सर्फेस पे ऑकर करता है जो लिक्विड के सर्फेस के ऊपर. कूलिंग इज ऑलवेज कॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन. और जो कूलिंग इफेक्ट होता है वो हमेशा कॉज होता है वो ओनली इन इवेपोरेशन. नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर ऑफ class 9 matters in our surrounding. That's all for today's video. Meet you in the next video. Till then, take care and be safe. Thank you.